one of the renowned uh, institution. I won't take the name. Acquired by Byju's. Yes. The whole education is boring. If I'm not Yeah, actually, Merchant Navy. Merchant Navy का पूरा टीम था and they were giving forms and lectures to the student कि ऐसा ऐसा होता है, आपको बोट पे जाने को मिलेगा और पूरा शिप होगा, you'll wear that white color वाला uniform. And I remember applying for it and they said नहीं, ये लड़कियों के लिए नहीं है. Do you think AI हमारी jobs ले लेंगे? एंड थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी होता है, लिमिटेड बजट के साथ कैमरे की बैटरी भी जा रही होती Do है. we have any sponsor for this podcast? सो वी डू हैव अ स्पॉन्सर फॉर दिस पॉडकास्ट जिनका नाम हम नहीं ले पाए. Before coming to India, I worked with NASA for 2 years. तो पूरा इलेक्ट्रिक प्रपल्शन का प्रोजेक्ट था N3X 300 पैसेंजर, पूरा हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल. आना है एंड तब से एक चीज बड़ी क्लियर थी एंड ऑल ऑफ अस नन ऑफ अस आर फ्रॉम द बिजनेस वर्ल्ड. Yes. कोई भी एमबीए नहीं है हमने से, है ना. तो वी आर ऑल इंजीनियर्स व्हिच इज वेरी क्रेजी. Hi everyone, this is your host Neha Chauhan, founder and CEO Aerobay. Welcome to the first ever episode of the Aerobay Stories. And this is Vaishnav, again one of the co-founders. We are really excited to start our own podcast series and आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है because we have a lot of exciting and controversial content and one of the core reasons to actually get Controversial? into Yes. So Maybe a little. maybe not in this episode. Maybe a little. Yes, but we'll get into that. And both of us are actually really excited to get into this. So over the past 4 years, when we formed our own company and did a lot of exciting things with a lot of students in schools across India, then we actually figured out कि बहुत सारा ऐसा content है जो अभी भी जा नहीं रहा है ना. Absolutely. चाहे हमारे services में हो, products में हो, तो maybe the only way to do it is through our own podcast series. I feel the world is changing at very very fast pace, जहाँ पर बहुत कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है एंड आई फील कि हम लोग ट्राई करते हैं कीप अप करने का थ्रू न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड यू नो टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, बट ये पॉडकास्ट एक ऐसा मीडियम हो सकता है जहाँ पर हमें नेक्स्ट 5 years 6 years में क्या क्या हो रहा है और हम लोग उसके लिए कैसे एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वेदर यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और वेदर यू इन अ स्कूल और कॉलेज, और हर एक पर्सन का अपना एक रोल है. एंड आई जेन्युइनली फील कि दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पिंग हैंड फॉर ऑल And द पीपल आउट we are also going to do it in very different kind of series कि यहाँ पे सिर्फ गेस्ट लेक्चर्स नहीं होने वाला है या फिर सिर्फ हम दोनों बैठ के पूरे टाइम बात नहीं करने वाले हैं. तो वी हैव वेरी एक्साइटिंग डिपार्टमेंट्स विद इन पार्ट ऑफ आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन. तो आई फील जैसे हमारी प्रोडक्ट टीम है ना, सो वी बिल्ड सच एडवेंचरस प्रोडक्ट्स, चाहे आपको ये पीछे दिख रहा हो और व्हेन यू एक्चुअली लुक एट आवर लैब्स व्हेन विच वी सेट इट अप एट स्कूल्स, तो वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड लॉट ऑफ वीडियोज टू बी रिकॉर्डेड जस्ट बाय आवर प्रोडक्ट टीम. Our content team in itself is very exciting, है ना. तो I'm sure कि they are also going to pitch in a lot. Yeah, I really hope that we can introduce our product team at least in one of our episode, and so We that should definitely. And then we have a range of network of all reputed educationists, चाहे वो principals हो, directors हो, owners हो. We are going to call them in our interview series. Yes. One of which is going to be live very soon. Very very soon, I think in this week only. Right. So stay tuned for that, and please do like, follow, share and subscribe our channel because that's how we'll be able to create more fun interesting episodes. Right, because we'll definitely need your feedback. हमारा पहला वीडियो सीरीज है, भले ही हमने कितने भी पॉडकास्ट देख रखे हो, तो आई एम श्योर वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स एंड मे बी आवर ओन डूइंग वेरी गुड. सो दैट इज व्हाट वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग. And please don't cancel us. Yes, and but this particular episode, so I wanted to call it a pilot to our podcast series. तो इस एपिसोड में हम क्या बात करने वाले हैं? आई फील हर चीज़ की शुरुआत से होनी चाहिए. तो थोड़ा पीछे जाते हैं, लेट्स गो बैक इन द टाइम वेयर आ सीड ऑफ इनोवेशन स्टार्टेड इन ऑल ऑफ अस आर माइंड, एंड वहाँ से स्टार्ट करें. बिल्कुल. Right. तो मे बी वाई नॉट योर ओन जर्नी, राइट? Well, yes. So, Vaishnav, I come from a very normal, humble background, and I studied in Army Public School. ये नॉर्मल सोनी लिव वाला नॉर्मल है या फिर सच नहीं में नहीं, नॉर्मल है? ये सच में नॉर्मल है. I mean, there's no sad story here, but yeah, I studied from Army Public School because yes, my father was in Army, and I remember when I was in 8th or 9th standard, and I feel I was a very good student. I'm not sure, but I feel I'm a very good student.
एंड व्हेन आई वाज इन 8th and 9th स्टैंडर्ड तो मेरे स्कूल में देयर वाज दिस टीम ऑफ पीपल हु हैड कम, दे वर फ्रॉम मर्चेंट नेवी का पूरा टीम था, एंड दे वर गिविंग फॉर्म्स एंड लेक्चर्स टू द स्टूडेंट कि ऐसा ऐसा होता है, आपको बोट पे जाने को मिलेगा और पूरा शिप होगा, यू विल वियर दैट वाइट कलर वाला यूनिफॉर्म. एंड आई रिमेंबर अप्लाइंग फॉर इट एंड दे सेड नहीं ये लड़कियों के लिए नहीं है. सो आई आस्क्ड हिम अच्छा सेकंड ऑप्शन क्या है. सो देन ही सेड कि पायलट बन सकते हो. So that day I realized pilot is a second option than merchant navy. Yes, I mean we'll come in details later, but yeah उस time पे pilot was my second option. But anyway तो वो हुआ, and उसके बाद I started researching कि pilot बनना कैसे है. तो when I started researching तो मुझे धीरे धीरे पता लगा कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके भी एक कोर्स होता है. बाई चांस अगर आप पायलट ना बनो तो इंजीनियर भी बन सकते हो, उसके बाद पायलट बन सकते हो. एंड देन आई रियलाइज कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने का एक ही तरीका है इंडिया में टू क्लियर द IIT एग्जाम, राइट. सो एज एनी टिपिकल इंडियन स्टूडेंट आई टुक अ एडमिशन इन वन ऑफ द रिनोन्ड institution, I won't take the name. Acquired by Byju's? Yes, acquired by Byju, and I spent 3 years of my life over there, and believe me it was horrible, it was really horrible. I gave my IIT एग्ज़ाम, उसके बाद मैं वापस घर आई. मुझे उसी टाइम पता था नहीं होने वाला है, बट फिर भी आई वॉज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. एंड रिज़ल्ट आया. आई थिंक मेरे रिज़ल्ट का रैंक कितना लंबा था कि मैं घर आते आते वो रैंक भूल गई, और अगेन मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, एंड आई वॉज वेरी वेरी डिसहार्टेड, एंड माई पेरेंट्स वर रियली एंग्री, माई डैड वॉज रियली एंग्री. सो थर्ड ऑप्शन आया आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कि AIT में तो हो ही जाएगा. पुणे, yes. I went to AIT and I saw it was such a well behaved college, है ना, कि सब लोग सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, बहुत सारा स्पोर्ट्स हो रहा है, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, अच्छे से करिकुलम हो रहा है. एंड आई डोंट नो, इवन दो माई होल लाइफ आई स्टडीड इन आर्मी पब्लिक स्कूल, मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए था, बिकॉज आई सॉ दैट लाइफ स्टाइल. आई ग्रू अप डूइंग द PT वाला सेशन जिसमें 4-5 बच्चे सुबह बेहोश हो जाते थे. आई वॉज वन ऑफ दो स्टूडेंट, बट फिर भी बहुत शॉकिंग फैक्टर था. आई डिड नॉट लाइक इट, एंड देन आई रियलाइज कि आई डोंट नो, आई वॉन्ट टू डू एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बट आई डोंट वॉन्ट टू फॉलो दिस पाथवे बिकॉज I had only one word in my mind, it's too boring. And I'm not a boring person. Are you? The whole education is boring, if I'm not wrong. Yeah, actually it was so annoying. I did not like it, and I also felt कि एक ऐसा फील था कि सबने आपको लीश से बांध के रखा हुआ है कि आपको ये करना है, ऐसे परफॉर्म करना है, एंड व्हाट्स द गारंटी कि ये सब करने के बाद भी यू विल एक्चुअली एंड अप डूइंग गुड इन लाइफ. देयर इज नो गारंटी, राइट. सो आई केम बैक, एंड सो आई बिलोंग फ्रॉम हरियाणा, राइट. एंड हरियाणा जितना अपना कंट्री में इट्स अ वेरी वायलेंट सिटी, जो कि बहुत हद तक है. एंड आई केम होम एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि ना मुझे AIT जाना है, IIT में मेरा हुआ नहीं है, करनी एरोस्पेस ही है, एंड आई हैव नो प्लान्स, राइट. सो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि कहाँ पे जा सकते हैं. आई केम अक्रॉस अ यूनिवर्सिटी, लंदन में थी, एंड आई वॉज लाइक वाह. उससे पहले आई थिंक अपार्ट फ्रॉम वो जो आर्मी का कैंट वाला एरिया होता है जहाँ पे पापा की पोस्टिंग होती है, आई नेवर इवन लेफ्ट दैट पर्टिकुलर एरिया. बट देन हेयर आई वॉज वन डे टेलिंग माई फादर एंड माई मम कि मुझे लंदन जाना है, और आई थिंक सितंबर इनटेक होता है वहाँ पर. आई वॉज दिस कॉन्वर्जेशन वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग अप्रैल और मे के टाइम के बाद कि आई वॉन्ट टू गो टू लंदन, आई वॉन्ट टू स्टडी दिस कोर्स, एंड रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री. So I think when you decided, so you always wanted to be an aerospace engineer then? I don't know. I mean, it sounds very, fascinating. The word aerospace, maybe that's why. And also, as I mentioned earlier, कि मैं इतना ज़्यादा, because I did everything by the rule. I was a good student. I went for an IIT coaching. We all were army student. We were, even though I hate sports, I had to do I did lot of sports. I wanted to try something different. And aerospace, I don't know, वो कभी कभी instinct होता है ना कि maybe this career, maybe this education, this stream domain, maybe at least not in terms of professional वाला career, but maybe in terms of life. It will give me something new in life which I have never seen before. So that was the idea, and I'm a very spiritual person, so I get that
जिस्ट इनसाइड मी, और जब भी मुझे लगता है आई गो विद दैट गट वाला फीलिंग, आई वेंट विद दैट एंड एरोस्पेस फेल्ट कूल ड्यूरिंग दैट टाइम. Aerospace felt cool, right? I think Yes. for me that was the only motivation to do it. Yes, So again, I am also a army brat. yes. My dad was in army and his last posting was Kargil 99. Oh. उसके बाद जब वो So रिटायर was he हुए, in Kargil war? he was actually in the engineers department, right? Oh. तो उनकी यूनिट लड़ती नहीं है, उनकी यूनिट सारे ब्रिजेस बनाते हैं हाँ. बिफोर द वॉर और एनी अदर इक्विपमेंट विच इज नीडेड. सो ही वाज द प्री वॉर स्पेशलिस्ट. अपना काम करके लकीली ही गॉट हिज पेपर्स गॉट अप्रूव्ड. Right. तो उनको रिटायरमेंट मिल गया एंड देन ही केम बैक होम एंड वी वर पोस्टेड इन कोटा. So and me being named Vaishnav has also has a back story to that because I was born in Vaishno Devi. And Yeah, I heard Vaishnavi. Like in my class, I had Yes, Vaishnavi. I yes. never met any Vaishnav in my Right. life. So Vaishnav is a surname in Rajasthan or in some places in northern India, but my lineage is South India, right, from Andhra. My name is Vaishnav, not my surname. So that comes because I was born in Katra, Vaishno Devi. Right. So that means your surname is Surname is something else which I'm not Before sure. your name. Yes. And which you will not be able to pronounce, I'm very sure. still we want to hear it. No, not for some other episode, I'm very Okay. sure. Okay. So And then, we'll then keep it a secret. my dad got posted to Kota, so that is where I brought up. So that is why मेरी हिंदी इतनी अच्छी है, and you will not be able to differentiate that. But when we shifted back to Kota, so I had all my schooling there, and 6th May, my parents decided that we'll put him in Sainik school. So there was a theme at that time that if you are very good in studies, or at least if you feel you are very good in studies, so then you should go to Sainik school because that is the pinnacle of education in your average army schools and all other KV and everybody. So I got selected, I went to Sainik school and I was not able to actually gel there. तो बिल्कुल तारे जमीन पर वाला स्टोरी था कि मुझे डाल तो दिया हॉस्टल में है ना, बट उसके बाद मुझे अपने जूते का लेस बांधना नहीं आता था. एंड ये तो पहला स्टेप है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ करना होता है आपको दिन में, है ना, तो मैं उसमें से कुछ भी नहीं कर पाता था. बट दैट वॉज द फर्स्ट डे एंड द फर्स्ट मंथ एंड उसके बाद के 7 साल जो बीते हैं, है ना, आई थिंक देयर इज हार्डली एनीथिंग व्हिच आई हैव नॉट लर्न व्हेन आई वाज इन स्कूल. कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो नहीं खेला है. देयर वाज नो प्रेशर ऑफ स्टडीज अंटिल अनलेस फेल हो जाओ और बाहर निकाल दें, वो स्टोरी अलग है. वरना 40% से ऊपर और 90% तक इन बिटवीन देयर वाज नो प्रेशर, है ना, तो आप कुछ भी हो सकते हो इनके बीच में. सो दैट इज समथिंग विच वॉज एक्चुअली फन बीइंग इन अ स्कूल विच हैड ऑल आर्मी बैकग्राउंड. तो सबका फोकस यही था कि आपको डिफेंस में जाना है. But और was worst it case a good thing or because if you don't focus that much on study in the early age, तो can be a very problematic situation, na? Yes. So again, I think the effect on the students was very individualistic. तो जिसको पढ़ने का शौक था उसको मना कोई नहीं करता था, है ना, बट ऐसा अलग से मोटिवेशन आपको कुछ नहीं मिलता था कि अरे ये छोड़ो अब तो पढ़ाई करने बैठना पड़ेगा आपको, है ना. इतना मोटिवेशन पढ़ाई के लिए कोई नहीं था. तो जो पढ़ना चाहते थे, जो टॉप करते थे, वहां पे भी 90, 95, 99 वाले थे. जो खेलना चाहते थे, So if that's the case, correct me if I'm wrong, I heard कि most of the people who finish सैनिक स्कूल NDA जाते हैं. इट वॉज द परसेप्शन कि अगर सैनिक स्कूल से निकले तो एनडीए जाओगे, एंड दैट वॉज द काउंट एज वेल. तो Right. लॉट ऑफ सैनिक स्कूल स्टार्टेड इन 1950s 60s. Right. तो तब से लेकर 70s 80s 85 तक सम ऑफ द स्कूल्स हैड अ वेरी गुड एंट्री रेशियो. Right. बट जब प्राइवेट सेक्टर को भी पता लग गया कि ऐसे एग्जाम दिया जाता है, ये फॉर्म होता है जो भरना होता है, ऐसे इंटरव्यू दिया जाता है, बाहर भी कोचिंग सेंटर खुलने लग गए कि एसएसबी क्रैक करो, एनडीए की एग्जाम की तैयारी करो, तो देन द रेशियो स्टार्टेड फॉलिंग डाउन एंड इट फेल वेरी बैडली इन सम ऑफ द स्कूल्स. So on that note, why are you not in NDA? ओह, सो दैट वाज द फर्स्ट ड्रीम, है ना, तो वो सबका होता है. सो एवरी स्टूडेंट हु एक्चुअली गेट्स आउट ऑफ सैनिक स्कूल, Right. एंड वी डिड नॉट हैड अ वेरी गुड नंबर इन माय बैच. तो आई थिंक 100 में से शायद 3 पहले एंड सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में 8 या 9 मैक्सिमम 10 जने होंगे जो एक्चुअली में अभी डिफेंस में सर्व कर रहे हैं. Right. आई डिड माई बेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट समवेयर डाउन द लाइन आई रियलाइज्ड कि आई थिंक मैंने इनफ एफर्ट डाला नहीं था. That being said, my real brother is already a Air Force pilot, so he's a Su-30 pilot. So he cleared NDA. In first and you attempt. did not. In first attempt. Oh wow. And मुझसे 2 साल ही बड़ा है. Is he serving right now? He is serving right now. He's a Su-30 pilot. He's an instructor. तो What is an instructor? so when you reach, grow to multiple stages, and पहले आप सीखते हो, फिर आप different place पे सीखते हो, फिर आप सिखाने वाली stage पे आ जाते हो. So he is, crossing So those he's stages. like what was that movie? Tom Cruise वाला movie. तो he is, yes. He will be posted at a place जो अपना इंडिया का टॉप गन होगा. Top Gun. है ना, तो ही विल बी गेटिंग इनटू दैट प्लेस वेरी वेल. तो मेरे पास इनफ मोटिवेशन था, है ना, बट मेरे पास इनफ
डायरेक्शन भी था टू गेट इनटू दैट, तो मे बी मेरा एफर्ट इनफ नहीं था, एंड लेटर ऑन आई रियलाइज दैट मे बी दैट वाज अ गुड डिसीजन to actually not push myself too much into defense. Really? I might not have been I a mean, good. now that can be a big controversy because most of the people in India, they think that, I mean, still, it's a very, cool thing to get if you can actually get a government job. And you are saying completely opposite of that thank God तुम्हारा selection नहीं हुआ. How did your parent respond to that? And this is such a important topic. तो मेरे parents, they were a little chill because बड़ा भाई ऑलरेडी एयरफोर्स तो पायलट एक था. सपना तो पूरा हो गया. हाँ, तो वो डिफरेंट है. अगर नहीं होता और मैं ओनली उम्मीद होता तो माइट हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी. एंड मेरा भाई सिंगापुर जाना चाहता था पढ़ाई करने के लिए इन ग्रेड 9th एंड 10th. Right. सो दैट अगेन फॉर हिम इट बिकेम अ ऑप्शन कि अगर मैं नहीं जा पाया, आई एम अ एयरफोर्स पायलट नाउ, मैं अपने भाई को वो ऑप्शन क्यों ना दूं. तो लकीली आई गॉट दैट ऑप्शन. सो दैट इज हाउ आई वेंट टू यूके एज वेल एंड आई डिड माई एरोस्पेस फ्रॉम देयर. एरोस्पेस करना था, कोई शौक नहीं था. इंजीनियरिंग करना था, मे बी लिटिल बिट, थोड़ा बहुत शौक था. थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स का शौक था. 11th-12th में कंप्यूटर्स था मेरे पास, है ना. बट आयरनी कि नीदर आई डिड कंप्यूटर्स, है ना. एंड इवन व्हेन आई डिड माय एरोस्पेस तो मैंने कुछ भी टेक्निकल नहीं सीखा है ना. नॉर कोडिंग नॉर एनीथिंग रिलेटेड टू डिजाइनिंग विच इज अ कोर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग. आई लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्किल्स which are very useful when we run a company right now. Right. And I think these kind of the stories, those journeys will be a lot of inspiration for our audiences. Yes. Because see, people think that going to any foreign country, I mean, yes, universities are as good as you see on those movies, those parties, late night parties, and those amazing fish and chips and traveling and all of those things. But then there is a darker side to it, right? So, are you ready for that darker side? I think we crossed that stage. And a lot of parents still ask me, जो अभी भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, if you have a consultancy. If I ask you, what is the most fond memory? How old were you when you went to UK? So 18. 18. Right? Exactly. So now crossed you my are 31. 31? Yes, 31. 31. Okay, fine. So you were 18 when you went to UK. Tell me one thing, your experience, then I'll tell you about mine. Your one very good memory and very honest one, right? Which you enjoyed and you still cherish to this day. And your one like a real nightmare and it took some time or a learning lesson you can say that you got out of it. But thank God that thing happened because शायद वो नहीं होता तो आज कुछ और हुआ होता. So I had a lot of good experiences. But if you And have I to think choose one. comparatively more bitter experiences, है ना, जिनसे learning बहुत ज़्यादा था. Right. Because it isn't easy when you go abroad with very limited money, है ना. Right. तो you see कि उतना ही difference है कि आप वहाँ 100 pound का घर लेके भी रह रहे हो, Right. है ना, and maybe a rich student or actually somebody from a affluential background comes and stays in a 1000 pound per हफ्ता, Right. है ना. Those आप options are also हाँ, there. दोनों ऑप्शन अवेलेबल. आप 100 पाउंड पूरे महीने में घर ढूंढ रहे होते हो और वहाँ 1000 पाउंड पर हफ्ता में भी जनता लंदन में रह रही होती है ना. एंड ऑल ऑफ देम आप सेम ही कॉलेज में हो, सेम ही जगह पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका सेम ही नेटवर्क बन रहा है. वन ऑफ द आई थिंक बेस्ट मेमोरीज आई हैड वाज व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट क्लास ऑनर्स, Right. बिकॉज बिना पढ़े आई थी, है ना. अगर मेहनत करके आती तो दैट वाज Why एनीवेज is एक्सपेक्टेड, राइट. UK education that easy? इन सम सेंस यस, है ना. एक इंडियन एजुकेशन से गुजरने वाले स्टूडेंट के लिए Yeah, actually, जो to be honest, I remember when I was in my first year of aerospace engineering, all the subject which they were teaching, चाहे वो मैथ्स के अंदर हो गया, फिजिक्स के अंदर हो गया, we already studied. I think 8th-9th में हमने पढ़ लिया था, पूरा ट्रिग्नोमेट्री याद किया हुआ था. वहाँ पे वो फर्स्ट ईयर के एरोस्पेस में हो रहा था. तो आई थिंक theoretically it was easy, है ना. there is no second thought about that, but it was better in terms of the structure, कि क्यों वो चैप्टर वहाँ पे था, उससे रिलेटेड असाइनमेंट क्या होना चाहिए, उससे आपके करियर में फायदा क्या होगा. These 3 things they used to solve very good. like real life approach. Yes. Which somewhere or else down the line वो हमारी कंपनी के विजन का पार्ट भी बन गया Right. है ना. बिकॉज वी आर इनटू कोर एजुकेशन, तो इवन जब हम लोग प्लान कर रहे थे एंड वी डिड 1.5 year ऑफ. We'll come on to that part, but I Yes. think you dodged my question. So the best part again, as I mentioned, है ना, Yes. would be कि getting first class honors without मेहनत, without tangible मेहनत,
है ना, कि जो दिखता है कि 12 घंटे पढ़ाई की, 16 घंटा पढ़ाई की, उसके बिना गेटिंग अ फर्स्ट क्लास ऑनर्स. बिकॉज आई रिमेंबर लास्ट के 3 महीने जो मेरे फाइनल ईयर I के heard थे. you were the only, correct me if I'm wrong, you were the only brown student जिसका नाम यूनिवर्सिटी के Yes, बोर्ड पे in था. that particular academic year. Right. है ना, so I was the only, not even brown, only Asian. Only Asian. Yes, because at that time, so Was out of China my there? and a lot of Chinese, yes. And out of my whole batch, 685 folks, सारे एरोस्पेस मिला के, एरोस्पेस विद डिजाइन, एरोस्पेस विद पायलट, एरोस्पेस विद स्पेस, सब मिला के देयर वर अराउंड 685 695 स्टूडेंट्स, एंड सिर्फ 3 बच्चों का फर्स्ट क्लास था. That must have felt really good. एंड आयरनिकली फर्स्ट क्लास था व्हेन माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ओनली एट 57 100 में से. तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमिकल एंडिंग ऑफ माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. But 57 पे so So that What is happened? That is how. So they had a lot of different options. कि आपके एक जगह कम आने के बाद भी you had a lot of different opportunities to grow and regain your marks. right. 57 भी ऐसे आया था कि प्रोफेसर का more or less, है ना, मेरे सर पे उनका हाथ ही था. अदरवाइज 57 भी मुझे तो नहीं लग रहा था देंगे. Right. फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मैंने एक सिंपल सा एयरफॉइल बनाया था, विच वी विल टेल यू गाइस व्हाट इज एयरफॉइल. जो एक नॉर्मल आपका एयरक्राफ्ट का I विंग think होता है, people should उसका know nowadays what is airfoil, right? It's a very basic term, but again, yeah, if you एक guys normal want, we aircraft का can. जो आपका विंग होता है उसका Yes, एक yes, 2D शेप yes, है ना. तो प्रोजेक्ट ये था कि मैं पैराग्लाइडर का विंग मुझे बनाना था, Right. फिजिकली नहीं, सिर्फ कंप्यूटर पे डिजाइन करना था, एनालिसिस करना था, है ना, कि कौन से कपड़े का होगा, कितनी हाइट पे उड़ेगा, है ना, लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ. सब होने के बाद एट द एंड जब मैंने रिपोर्ट सबमिट की, मेरा पैराग्लाइडर उल्टा उड़ रहा था. है ना, कि फ्लायर जा रहा था इस डायरेक्शन में, पैराग्लाइडर जा रहा था इस डायरेक्शन में. एंड जो मेरा सुपरवाइजर था उसको समझ में आ गया था. अब जो एक्सटर्नल आया था, अब उसको बता नहीं सकता, वरना बेइज्जती इसकी भी होती कि तुम क्या कर रहे थे साल भर जब तुम्हारा स्टूडेंट उल्टा उड़ा रहा है पैराग्लाइडर. तो उसने मुझे इशारा किया, मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, एंड उसने पास करके फाइल आगे भेज दी. So now I know why it is your, it comes under your good memory वाला section. Yes, yes. 57 आने के बाद भी you had the first Getting class first class honors. honors. No, but jokes apart, I feel कि it's at the end of the day, it's how you took that exam with a proper logical reasoning. वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. I covered in all the theory exams. Exactly. I covered in all the theory exams. Exactly. I think यहाँ पे बहुत सारे लोग ये 75 80 क्रॉस नहीं हो रहे थे, वहाँ पे सब 95 क्रॉस थे. Again very simple crack, simple techniques, and मतलब rather than hard work, it's all about smart work. And what about the worst experience you had? So worst experience, again a part of a good experience, but I would say when I got my when I was deciding that I'm coming back to India. तो गोइंग फॉरवर्ड इफ आई लुक बैक, सो नाउ आई फील बहुत अच्छा मूवमेंट था, बट उस टाइम आई वाज फीलिंग इट वाज अ वेरी बैड मूवमेंट, है ना, दैट आई मे हैव बीन वांटिंग टू स्टे अ लिटिल बिट मोर, है ना, जो मेरा जॉब चल रहा था, आई वांटेड टू कंटिन्यू दैट, बट बिकॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, ब्रेक्सिट एंड Brexit. यस वाज द मेजर रीजन. गुड थिंग दैट हैपेंड, and I we came back, and right now Maybe you manifested this. I don't know what I manifested, but this happened. You know? Yes, yes. So that was one of the, you know, a little cold memory, but good, and I feel good. कि अब अगर वैसा नहीं होता तो आज शायद पता नहीं क्या होता. Who would have known? है ना, कितनी बड़ी कंपनी होती, इतने लोग होते, इतना सारा इम्पैक्ट होता, that I'm not sure of. Great. So that is Good something- things happen for a reason. Right. Right. Exactly. That is Right. something. So I totally believe in karma and manifestation. वो तो पक्का है. I feel you did a lot of learning throughout your process, which again is helping in your journey. For me, it was a completely different thing because I left India with an ego ki I was good at everything, and it was like a shocking factor for me. And I was kind of a person who always take things to heart. है ना, कि अगर मुझे कुछ चाहिए वो मुझे नहीं मिला तो देन आई गेट वेरी मेसी इनसाइड माई हेड, राइट. सो आई चोज लिवरपूल यूनिवर्सिटी बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द कूलेस्ट यूनिवर्सिटी. आई मीन वहाँ से अटलांटिक ओशन पूरा स्टार्ट होता है, टाइटेनिक स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, यू गो टू दैट सिटी. आई मीन दैट्स माई ड्रीम. वन डे, होपफुली आई एम मैनिफेस्टिंग राइट नाउ, वन डे आई हैव अ हाउस ओवर देयर. It's the most wonderful city you could ever visit. I went over there. I remember my first day, there was this like fresher week, fresher party was happening, and I saw that all of that for the first time in my life. So the culture shock which I came across was, I don't know, very very different experience. So I remember my first week in Liverpool, I could not gel with people. Everybody had a very good accent and I could not gel. So I felt really really horrible, you know. I felt out of place and I was like, यार ये तो गलत डिसीजन कर लिया.
एंड आई रिमेंबर आई वेंट टू माई हॉल, सो वी यूज टू कॉल इट हॉल्स ओवर देयर, जो अपना यहाँ पे पीजी और वो सब होता है. सो आई वेंट बैक टू माई हॉल्स एंड वहाँ पर सो द होल फूड कल्चर वॉज वेरी डिफरेंट. सो आई टुक हॉल्स विद फूड. तो वहाँ पे ऑल नॉन वेजिटेरियन, मी बीइंग लाइक प्योर वेजिटेरियन स्टूडेंट ओवर देयर, आई कुड नॉट मेक एनी फ्रेंड्स एंड it was just not good. So I tried to over compensate it with my academics, because generally, I mean, I feel like I try to get things what I want and try to do it in my way. जब वो मुझे नहीं मिलता है तो then I try to figure out different kind of stuff. लेकिन इन सब के बीच में, even though academically I was doing good, I started making slowly friends जो भी वहाँ पे Indian community. I don't know, for some reason I really gelled with Pakistani community. I think my first friend over here, Ozi Usman Rahmani, was my first friend from Pakistan, and I joined a Pakistani community. That time I realized कि जितना इंडिया, आई माइट गेट इन ट्रबल फॉर सेइंग दिस, बट आई फील कि जितना इंडिया के अंदर हम लोग ये जो डिवीज़न का क्रिएशन है, वहाँ पे जाके व्हेन यू आर 17 and 18 ईयर ओल्ड किड, इट नेवर रियली मैटर्ड एक्चुअली कि आप पाकिस्तानी सोसाइटी में हो, इंडियन सोसाइटी में, आप चाइनीज़ सोसाइटी में, बिकॉज हर कोई वहाँ पे एक स्ट्रगल और लर्निंग पीरियड से गुजर रहा था. एंड मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा, जैसे कि अपना खुद का खाना बनाना, खुद के कपड़े धोना, पार्ट टाइम जॉब करना. ओ माई गॉड, बट those were some good memories. So I remember we used to go to university सुबह 6 बजे 7 बजे जब भी लेक्चर होता था. उसके बाद रात को नाइट शिफ्ट होती थी. We used to start from 9 PM till सुबह के 4-5 बजे तक. तो इवन दो आई थिंक आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उस टाइम पे जस्ट was there इंस्टाग्राम in 2012? I'm not even sure. नहीं था ना. Facebook started I becoming remember famous because I used to do Skype with my parents. हाँ, तब तक भी वीडियो कॉल Skype आता था, WhatsApp नहीं था, तो इंटरनेट बहुत महंगा था. इंटरनेट बहुत महंगा था, तो कुछ था ही नहीं टू एंटरटेन योर सेल्फ, है ना. तो बहुत ग्रूसम वर्ल्ड उस टाइम पे फील होता था. बट एनीवे, उसका बेस्ट पार्ट ये था कि जब आफ्टर आई फिनिश माई अंडर ग्रेड, माई पोस्ट ग्रेड, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर, आई लर्न सो मच that I came out as a completely different person, right? And वो I feel कि whether it's for the sake of education or just traveling or just to get an experience, every parent, और बाहर की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, every parent should send their child on a single solo trip. ये this should be out of their comfort zone. out of their comfort zone. चाहे आप दूसरी स्टेट जाके पढ़ाई करो, चाहे ट्रैवल करो, आप दिल्ली में हो, आप पंजाब चले जाओ, है ना. हर बच्चे को एक बार लाइफ में अपना बैकपैक करके बाहर जाना चाहिए, जहाँ पर भी वो जा सकते हैं. एंड बिलीव मी, योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू कम आउट अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. मैं ये नहीं बोल रही कि सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, बट अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन इन टर्म्स ऑफ देयर टेक ऑन देयर लाइफ, जो कि people talk a lot about travel. जो कि बहुत ज़रूरी है. एंड when I'll come on to that portion. That is the whole idea of starting this whole organization, Aerobay, and that was the vision. Education, product, experiential learning, ये सब तो बात की बात थी. आई फील कि अभी भी बहुत सारा गैप है मार्केट के अंदर, जो कभी एक्सपीरियंस से जोड़ता ही नहीं है, जो कभी ये बताता ही नहीं है कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है, राइट? कहाँ काम आने वाला है, कहाँ काम आने वाला है. एग्जैक्टली, बिकॉज जो हम सोचते हैं इवन टिल कॉलेज लेवल, सब कुछ सेफ एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है ना. आपके क्लासरूम है, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स है, सब कुछ बहुत सेफ चल रहा है. और एक दिन पता लगता है कि 4th ईयर ख़त्म हो गया है, अब जॉब ढूंढना पड़ेगा. जॉब में मैनेजर बहुत क्रूअल है, वर्क एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है, न्यू स्टेट में जाके फूड कल्चर समझ नहीं आ रहा है. देन द रियल जर्नी स्टार्ट्स, राइट? तो आप वहीं पे मानो या ना मानो, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड 35, 36, दे ऑलरेडी स्टार्टेड हैविंग मिड लाइफ क्राइसिस. और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि सही से एक स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, शायद प्लेसमेंट में एक जॉब मिल गई तो लाइफ सेट हो गई. इट विल कम बैक, इट कम्स बैक टू यू, इट हिट्स यू सो हार्ड. और वो एक्सपीरियंस रियल लाइफ में लाना ही, आई थिंक ये पॉडकास्ट का भी हमारा बिल्कुल नज़रिया है. So why don't you tell our audiences a little bit about what exactly is this? Yes, क्या प्रोडक्ट रखे हुए हैं, क्या करते हैं हम लोग, क्या शुरू किया है हमने? Yes. So I'll give you my take on behalf of
the whole organization. So we are a startup, of course. I mean, can we call ourselves a startup? It's been 5-6 years now. आई थिंक 7 साल से बोल सकते हैं, बोल जब तक सकते हैं स्टार्टअप इंडिया अलाउ कर रहा है। लीगली बोल सकते हैं, हाँ। सो जब तक स्टार्टअप इंडिया अलाउ कर रहा है, सो वी आर अ स्टार्टअप एंड आई लव दिस वर्ड स्टार्टअप, बिकॉज अगर 10 साल भी हो जाए, 12 साल भी हो जाए, 20 साल भी हो जाए, आई ऑलवेज वॉन्ट टू एसोसिएट माई सेल्फ विद द स्टार्टअप, बिकॉज देर इज कुछ फ्रेशनेस है इस वर्ड में, जो कि नॉर्मल एमएनसी एंड कॉर्पोरेट कल्चर में होता नहीं है, राइट? एसएमई थोड़ा बोरिंग लगता है, एसएमई बहुत बोरिंग लगता है, एग्जैक्टली। एंड आई फील कि आई डोंट नो, मे बी एज अ यंग फाउंडर, और बिकॉज we were, or at least I can talk for myself, I was never the one who go by the rule. I mean, yes, of course there has to be a rule for the things, I follow those things, but I feel कुछ level of freedom होना चाहिए हर किसी को अपने work culture में। क्रिएटिविटी will not come out, Creativity won't come out, creativity won't come out, and your workplace should be an interesting place, right? जहाँ पे everybody should work on their job as an individual project, right? That's how you can make a team. So when ये प्रोडक्ट का आइडिया कैसे आया? So- यही करना है, कुछ और क्यों नहीं करना है? yeah, so it's a very interesting back story. Before coming to India, I worked with NASA for 2 years. तो पूरा इलेक्ट्रिक propulsion का प्रोजेक्ट था, N3X 300 पैसेंजर, पूरा हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल। आई मीन स्टिल इट्स इन द प्रोसेस, नहीं बनाया अभी भी। When I was part of that project, हमारा एक लैब हुआ करता था। उस लैब में it took me 7 years, पूरा अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, सारा काम वाम करके टू रीच देयर। आई सॉ सो मेनी स्टूडेंट्स, 7th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, आर्ट्स के स्टूडेंट डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे हैं, कॉमर्स का स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, पूरा कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं, दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, एंड इट केम एज अ शॉकिंग फैक्टर टू मी कि यार ये भी पॉसिबल है क्या, right? So I remember I had an Indian professor over there. He was my project supervisor also. I had a conversation with him during that time, and there was no idea about education and product and all of those things. The feel was, और also maybe शायद वो nationalism वाला मेरे अंदर आ सकता है। I don't know what was that, or maybe we are too naive, because इतने साल इंडिया से बाहर रह के, अपने पेरेंट्स से दूर रह के, जॉब करके एंड वो सारी चीज़ें करके, एक वो फील था कि आई वॉन्ट टू कम बैक होम, मुझे वापस आना है, मुझे इंडिया में ही काम करना है एंड कुछ डिफरेंट करना है ना? आई इफ़ समबडी, इवन उस टाइम पे भी अगर कोई मुझे बोलता कि मुझे टिपिकल आईटी कंपनी में 9 to 5 24 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना है, आई कुड हैव नेवर डन दैट। तो बस वो फील था कि वापस आके कुछ नया स्टार्ट करना है। एंड देन एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट, जब आप सारे टाइमलाइंस कंबाइन करो कि 4 डिफरेंट फाउंडर्स एंड सबको अपनी अपनी स्टोरी में उसी 1 2 3 साल में सिमिलर इंस्पिरेशन आ रहा था। दैट इज क्रेजी, दैट इज क्रेजी, है ना? दैट इज क्रेजी, तो चारों अलग अलग जगह से आ रहे हैं। एंड ऑल्सो आई फील दैट इज वेरी रियलिस्टिक, बिकॉज जिस टाइम पे मुझे ये थॉट्स आए, उसी टाइम पे आई थिंक यू आर ऑल्सो हैविंग द सेम काइंड ऑफ सिमिलर। एंड आई थिंक जब बिल्कुल स्मॉल लेवल पे आइडिया था, सो यू आर डूइंग वेरी डिफरेंट थिंग्स बैक देन, राइट? तो इट वाज ऑल कॉलेज वर्कशॉप्स, स्कूल में कैसे इनोवेशन लेके आना है, एंड तब से एक चीज बड़ी क्लियर थी, एंड ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस आर फ्रॉम द बिजनेस वर्ल्ड। यस, कोई भी एमबीए नहीं है हम में से, है ना? तो वी आर ऑल इंजीनियर्स, व्हिच इज वेरी क्रेजी, एंड यू कैन एक्चुअली रन एंड अ बिजनेस, एंड जिसमें 4 में से 3 जने तो अभी कोर इंजीनियरिंग वाला काम कर भी नहीं रहे, है ना? तो दैट इज द मोस्ट आयरॉनिक पार्ट, बट द अगेन द बेस्ट पार्ट वाज बिल्कुल भी एमबीए ना होना, स्टार्टअप बैकग्राउंड ना होना, तो भी उस टाइम पे ये समझ में आना कि एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम जो मार्केट को चाहिए, रादर देन कि सब एरोस्पेस है तो प्लेन बनाना सिखाते हैं सबको, वैसा कभी लॉजिक नहीं था, है ना? अदरवाइज शायद हम भी उसी ट्रैप में फंस जाते कि जो अच्छा आता है वो करके बेचना शुरू कर देते हैं, बट किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए ये कौन पूछेगा? रादर मार्केट को क्या चाहिए, चाहे आप ठोकर मार के सीखो, एंड आई फील वो कोई भी दुनिया का, आई मीन नो ऑफेंस टू एमबीए कोर्सेज, बट कोई भी एमबीए कोर्सेज नहीं सिखा सकता है। इट आई मीन अगर ऐसा होता तो फिर शायद आज कॉलेज ड्रॉप आउट मल्टी मिलियनर, बिलियनर, यूनिकॉर्न और आईपीओ कंपनी नहीं होती। ड्रॉप आउट का भी प्रॉब्लम नहीं है, इवन योर आईआईएम्स आर यू नो आर लैकिंग प्लेसमेंट्स, एग्जैक्टली, सो योर आईआईटीज आईआईएम्स आर लैकिंग प्लेसमेंट, राइट? तो आई थिंक धीरे धीरे अब आगे जाते जर्नी बहुत इंडिविजुअल होने वाला है, राइट? तो दिस विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो डू यू थिंक ये बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है? आई फील ये डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है, एंड ऑल्सो आई फील वैष्णव की इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, राइट? नो मैटर हाउ मच ऑफ हार्ड वर्क यू पुट बिहाइंड वन पर्टिकुलर थिंग, मैं बहुत ज़्यादा मानती कि आपकी टाइमिंग बहुत सही होनी चाहिए।
उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें लाइन अप, तो हमारे लिए आई फील कि वी वर वेरी लकी द टाइम व्हेन वी वर लिविंग यूके, बिकॉज वी हैड इनफ एंड ये बहुत ज़रूरी है कि आई फील निखिल कामत का मैंने एक वीडियो देखा था, somebody asked him कि which country, which place you think is the right place for anyone to go and be successful in life. उस टाइम पे निखिल कामत ने बोला था कि अगर एट राइट टाइमिंग विद द राइट स्किल सेट अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो, देर इज नो बेटर कंट्री देन इंडिया राइट नाउ. द ओनली पीपल एंड आई फील यू नो अपनी सोसाइटी में आसपास माई फ्रेंड्स एंड देयर किड्स दे आर स्टिल क्रीपिंग अबाउट कि लंदन चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं. आई मीन यू लुक एट द कंडीशन ऑफ दोज कंट्रीज, है ना, जितना एजुकेशन का आप वहाँ पे पे करते हो, यू आस्क योर सेल्फ डू दे इवन हैव इनफ जॉब्स एट दैट पे ग्रेड टू फुलफिल योर करियर नीड. बिल्कुल भी नहीं. बट अगेन बिकॉज एट सम पार्ट दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि क्या अपना एजुकेशन सिस्टम इतना दे पा रहा है. दैट इज ट्रू. That's why we are here, right? That's why the whole idea of Aerobase started ki see, the school system also nothing to blame for, because they also don't run independently here in India. There's a lot of management, lot of policies. जितने भी CBSE schools हैं वो अपना एक fee नहीं बढ़ा सकते, because fee नहीं बढ़ाएंगे तो फिर external program companies कैसे आएंगी. So it's all interrelated. But I feel कि companies, organization who's actually passionate about education can give them that kind of idea and vision कि ये possible है. आई थिंक इंडस्ट्री और एकेडमिया से तो भागना नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. देयर इज नो पॉइंट फाइटिंग विच इज इनएविटेबल कि आप बोलो नहीं सब कुछ स्कूल ही करा दे, आप बाहर से कुछ मत लेके आओ. वो आप कितना भी प्रैक्टिकली कर लो, बट यू विल नीड सम इंडस्ट्री. पॉसिबल नहीं है. लाइक इन आवर यूनिवर्सिटी जो हमारा ऑटोमोबाइल का लैब था, आई थिंक इन योर्स एज वेल, दैट वाज सेटअप बाय फोर्ड, राइट? यस. सो दैट बिकम्स वेरी इजियर कि आप फोर्ड आपको 4 साल से देख रहे हैं, तो उसको पता है कौन सा बच्चा मेरे साथ इंटर्नशिप कर सकता है, किसको मैं एक्सटर्नल ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, किसको आगे जाके करियर में कुछ फायदा हो सकता है, या मे बी जो फोर्ड का बंदा पढ़ाने आ रहा है वही शायद 4 नेटवर्क और दे दे. राइट. तो कुछ लेवल का यू नीड दैट एक्सपोजर. राइट. बट हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम इज गेटिंग दैट इनटू स्कूल्स? क्या कर रहा है एरोबे एग्जैक्टली? राइट. So Aerobay is doing a very very interesting thing. So first of all, just to be clear so that हमारी audience को भी confusion ना हो, when I say education, अभी last में past decade में there has been a bubble जहाँ पे बहुत सारी companies आई थी, not taking any names. तो we are not tuition classes company, है ना, जो आप बच्चे एक टैबलेट के अंदर वो पूरा कंटेंट वीडियो से जो पढ़ रहा है, देयर आर लॉट ऑफ फ्री स्टफ ऑन यूट्यूब यार, यू कैन गो एंड सी दैट. सो वी आर नॉट दैट, वी आर नॉट अ हॉबी क्लासेस कंपनी. हम लोग रोबोटिक्स कोडिंग वो सब नहीं करा रहे. ऑफ कोर्स ऑल द टेक्नोलॉजीज आर पार्ट ऑफ इट, कंसिडरिंग AI इतना बूम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं. बट आर विजन इज़ हम लोग स्कूल में एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं टू मेक स्कूल मोर पावरफुल, राइट? कि अगर एकेडमिक से स्टार्ट करते हैं, राइट, वी इंटीग्रेट आर करिकुलम बच्चों के सब्जेक्ट से लेके. तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच अ स्टूडेंट अबाउट समथिंग लाइक अ पाइथन और वेरी एडवांस कोडिंग 4th क्लास के बच्चे को, जब उसको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है. तो वैसे एक मार्केटिंग भी गलत है, राइट? सो कमिंग बैक टू एरोबे का विजन, वी गो इन टू द स्कूल, हम लोग उनके करिकुलम के कॉन्सेप्ट को लेके, जो कि ऑफकोर्स उनकी बुक से ही है, वी इंटीग्रेट अ टेक्नोलॉजी. और वो टेक्नोलॉजी बिकॉज एरोबे टीम इज़ अ टीम ऑफ एरो एंड टेक इंथुजियास्ट, इट कैन बी एनी थिंग यू कैन थिंक ऑफ टचिंग एयर, वाटर एंड लैंड. सो एरोस्पेस, ड्रोन्स, ई-व्हीकल, मीटियोलॉजी, बिग सेगमेंट डिज़ाइनिंग. जिनको नहीं करना है यार साइंस एंड मैथ्स, स्टूडेंट हु आर वेरी गुड इन डिज़ाइनिंग, आर्टिस्टिक उनको कुछ करना है, या कॉमर्स वाले स्टूडेंट, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है. एंड वी आर, आई फील स्लोली विद टाइम वी आर एक्सपैंडिंग एंड वी आर ट्राइंग टू रिलेट इट. ये सारी चीज़ें होने के बाद कि जब बच्चा 12th के बाद स्कूल से निकले तो उसका स्किल बेस्ड और उसका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि अगर वो IIT नहीं क्लियर करे और उसके पास इनफ पैसे नहीं हैं, तो ही डोंट हैव टू टेक अ प्रॉपर्टी बैक लोन और लंदन भागना पड़े. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक वी विल हैव अ लॉट मोर एपिसोड्स जहाँ पे एरोबे के बारे में और बहुत कुछ पता लगने वाला है आपको, कि हम सच में करते क्या हैं, कैसे अलग हैं बाकी कंपनीज से. और इवन आई वुड टेक अ स्टेप अहेड एंड से कि शायद पूरी दुनिया में जो स्टेम और रोबोटिक्स की कंपनीज हैं उनसे हम क्या अलग कर रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट. सो यू गाइज हैव टू स्टे विद अस. सो आई फील बहुत सीरियस हो गया है, टू हैवी फॉर आवर फर्स्ट पॉडकास्ट. चलो इसी पे आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. Is this the last question? I mean, I'm not sure it's the last question, but it's a very important question. And I need a very honest opinion. Do you think AI हमारी jobs ले लेंगे?
और लेट मी रिफ्रेज इट, AI नहीं, AGI, सॉरी एआई नहीं, AGI, ओके, जनरेटिव, जनरेटिव एआई, राइट, यस। है ना। आई थिंक इतनी जल्दी तो नहीं लेने वाला है, एंड इलॉन मस्क लेने भी नहीं देगा। अच्छा, डू यू थिंक सैम ऑल्टमैन इज एन इविल सोल? ओह, सो दैट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। हाँ, बट स्टिल वी वांट एन आंसर, राइट? तो नॉट फॉर दिस पॉडकास्ट, आई एम श्योर। Come on, We'll it have a has to separate be, it has podcast. to, you can't dodge the Just question. नहीं, It we'll has have to be yes or no. Come on. Do you think Sam Altman is an evil soul? no, I don't think so. Why not? एंड आई थिंक ऑलरेडी इतना इनफ काम कर दिया है, बट अब जो न्यूज़ आया है कि एप्पल के साथ ओएस में इंटीग्रेट करने वाले हैं, दैट इवन आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट। लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली पैन्स आउट। एलॉन मस्क ने तो बोल ही दिया कि इज नॉट गोइंग टू अलाउ द आईफोन्स, हाँ, Elon Musk is saying Yes. no for that. एंड ही विल कीप देम इन अ फैराडे केज आउटसाइड देयर ऑफिसेस, Right. ताकि दूर दूर तक भी ओएस है ना अपना कुछ एआई का जादू ना चला पाए। Right. बट अभी स्टिल बहुत फ्रेश टॉपिक है, राइट? हॉलीवुड मूवीज इतनी ज्यादा देख ली, इसलिए हमें पता है क्या बुरा हो सकता है ना, बट इन रियलिटी No, I feel I feel those of you want to know. I mean, we'll have another podcast. If you want to have another podcast, so please write it to us. If we get enough feedback from you guys, we'll tell you interesting, detailed conspiracy theory about Sam Altman. But do listen to an episode called Foundering. It's on Bloomberg. I think Right, I yes. recently heard it. There are a lot of controversy, and it says ki at the end of the day, he is creating solution for a problem which he is creating himself. So something to think about. So on that note, I think यस, आई थिंक वी शुड क्लोज दिस, which we should close है ना। this. थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, हमने सोचा नहीं था इतना लंबा जाएगा। Yes. I don't know. I mean, see, एंड because थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी होता है, लिमिटेड बजट के साथ कैमरे की बैटरी yes. भी जा रही होती Do we है। have any sponsor for this podcast? यस Yes. यस, सो वी डू हैव अ स्पॉन्सर फॉर दिस पॉडकास्ट, जिनका नाम हम नहीं ले पाए, है ना। तो इट इज नॉट अ ब्रांड, इट इज आवर इन्वेस्टर्स गाइस। Right. पहला एपिसोड है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देने वाला है ना। तो जो पैसा मिला है Yeah, कंपनी but चलाने के feel लिए, free to write us in case you want to sponsor us. बट पहले उनको बता देना चाहिए था पहला पॉडकास्ट शुरू हो गया है, या फिर We'll सीधा लिंक we'll send in the link. We'll सीधा send link- them the- सीधा link सीधे जाएगा। LinkedIn पे मिलेंगे. जापान में बैठे हैं, फिर भी लिंक तो भेज ही सकते हैं। And you want to tell them about our channel, how they can find us on different social media. राइट, सो पहला एपिसोड है ना, तो बहुत सारे ग्लिचेस होने वाले हैं गाइस, YouTube. है ना। तो बेयर विद अस, बट यूट्यूब पे द एरोबे पॉडकास्ट के नाम से, है ना, वी आर लॉन्चिंग ऑल आवर सीरीज एंड एपिसोड्स अंडर दैट बैनर। Does it call the Aerobe podcast on YouTube or द we need एरोबे to ask पॉडकास्ट, द एरोबे पॉडकास्ट, Aerobe podcast? द एरोबे Or पॉडकास्ट। What is our YouTube name? You don't even know what is your name. Aerobe. यूट्यूब नेम एरोबे है ना, बट दिस विल गो अंडर द बैनर ऑफ आवर, We will decide, guys. We are still shooting. विल हैव अ सेपरेट प्ले। तो गाइस हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगा। हाँ। एक बार पहले हमें मिल जाए, फिर तुम्हें भी मिल जाएगा। फिर okay, what about Instagram? इंस्टाग्राम तो इट विल गो ऑन आवर ओन पेज एज ऑफ नाउ, राइट? हाँ, तो so- एरो_बे। Right. तो जब तक BAY. yes, जब तक नहीं मिलता है, जब तक एटलीस्ट एरो_बे तो फॉलो करो। हाँ, AERO_BAY. BAY. Aerobic website पे हाँ, चले मत प्लीज मत चले जाना। बहुत सारे स्कूल ऐसे खो गए हमारे, है ना। वो अभी तक ढूंढ रहे हैं कि उनका सुब्बा का ट्रेनर आया नहीं, और हम कुछ और कराना चाह रहे थे, तो थोड़ा सा वहाँ पे हमें दुख लगा है। And Facebook. एंड विनीता ने भी शार्क टैंक में बोला था नाम चेंज कर लो, है ना। हाँ। तो वो भी हम नहीं कर पाए, वो हमने मना कर दिया. मना कर दिया। जो सबको बोलते हैं, तो हमें भी बोला था, है ना। बट आई थिंक वी विल कंटिन्यू विद दिस And नेम। Facebook. फेसबुक और लिंक्डइन भी है। Facebook we are under the name of Aviotron Aerospace. I know too many name. एवियोट्रॉन, ये कंपनी का नाम है गाइस, हाँ, है ना। this- ये this- लीगल नेम है, This legal name. है ना। and this अगर is ये not- नहीं रहा तो सैलरीज नहीं आती है सबको, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये और जरूर बाकी है. आप लोगों के लिए ये बाकी हम इम्पोर्टेंट लोग यहाँ पे सारे वो दे देंगे नेम. ओके. है जो देना होता है। देना हाँ, जब पॉडकास्ट खत्म होता है, जो भी चीजें देनी होती है सब आ जाएंगी, है ना। Okay, तो thank गाइस, you यस, everyone. दैट विल बी, है ना, आवर क्लोजिंग Bye. फीट। थैंक यू, सी यू ऑल, एंड फॉलो, सब्सक्राइब, है ना, वो पक्का, लाइक शेयर. पक्का करना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच।